Hello student, today we are going to start the remaining portion of the chapter A Truly Beautiful Mind. As you know, I have completed 7 paragraph of this chapter in previous video. I hope you like the video. The remaining portion of this chapter will continue today. I am going to read the book and I hope you will open the book and see it. In 1900, at the age of 21, Albert Einstein was a university graduate and unemployed. As you know, I have already explained the chapter with you that when Einstein was only 2.5 years, he did not speak anything, but when he spoke twice a word. आइंस्टीन 2.5 साल तक तो बोला नहीं, लेकिन जब बोला तो एक बार में 2 शब्दों को उसने बोला। उसके बाद उसने अपनी पढ़ाई को पूरा किया। 15 इयर्स की एज तक जो है वो म्यूनिक में ही पढ़ता रहा। उसके बाद वो ज्यूरिख चला गया अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करने के लिए, जहाँ पर इसकी मुलाकात मिलेवा मैरिक से होती है और ये दोनों लोग आपस में एक दूसरे से अफेक्शनेट हो जाते हैं और बाद में दोनों लोग साथ में रिलेटिविटी का जो प्रिंसिपल है उस पर काम करते हैं। आफ्टर दैट ही वर्कड एज अ टीचिंग असिस्टेंट, गेव प्राइवेट लेसन्स एंड फाइनली secured a job in 1902 as a technical expert in the patent office in Bern. While he was supposed to be assessing other people's invention, Einstein was actually developing his own ideas in secret. He is said to have jokingly called his desk drawer at work the Bureau of the Theoretical Physics. One of the famous papers of 1905 was Einstein's special theory of relativity, according to which time and distance are not absolute. Indeed, two perfectly accurate clocks will not continue to show the same time if they come together again after a journey if one of them has been moving very fast relative to the other. From this followed the world's most famous formula, which describes the relationship between mass and energy, E equal mc square. While Einstein was solving the most difficult problem in physics, his private life was unraveling. Albert had wanted to marry Mileva right after finishing his studies, but his mother was against it. She thought Mileva, who was 3 years older than her son, was too old for him. She was also bothered by Mileva's intelligence. She is a book like you, his mother said. Einstein put the wedding off. The pair finally married in January 1903 and had 2 sons. But a few years later, the marriage faltered. Mileva, meanwhile, was losing her intellectual ambition and becoming an unhappy housewife. After years of constant fighting, the couple finally divorced in 1919. Einstein married his cousin Elsa the same year. Einstein's new personal chapter coincided with his rise to world fame in 1915. He had published his general theory of relativity, which provided a new interpretation of gravity. An eclipse of the sun in 1919 brought proof that it was accurate. Einstein had correctly calculated in advance the extent to which the light from fixed star would be deflected through the sun's gravitational force. The newspaper proclaimed his work as a scientific revolution.
Einstein received the Nobel Prize for Physics in 1921. He was showered with honors and invitations from all over the world and loaded by the press. When the Nazis came to the power in Germany in 1933, Einstein emigrated to the United States. 5 years later, the discovery of nuclear fission in Berlin had American physicists in an uproar. Many of them had fled from fascism just as Einstein had, and now they were afraid the Nazis could build and use an atom bomb. At the urging of a colleague, Einstein wrote a letter to the American President Franklin D. Roosevelt on 2nd August 1939, in which he warned a single bomb of this type exploded in a port might very well destroy the whole port together with some of the surrounding territory. His word did not fail to have an effect. The Americans developed the atomic bomb in a secret project of their own and dropped it on the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki in August 1945. Einstein was deeply shaken by the extent of the destruction. This time he wrote a public missive to the United Nations in he proposed the formation of a world government. Unlike the letter to Roosevelt, this one made no impact. But over the next decade, Einstein got more involved in the politics agitation for an end to arm building and the using his popularity to campaign for peace and democracy. When Einstein died in 1955 at the age of 76, he was celebrated as a visionary and a world citizen as much as a scientific genius. Now I explain the para. In 1900 at the age of 21, सन 1900 की बात है, जब ये 21 साल के होगा, एल्बर्ट आइंस्टीन वाज अ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट. जब इन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया एंड अनएम्प्लॉयड, और ये इनके पास कोई भी रोज़गार नहीं था. ही वर्कड एज अ टीचिंग असिस्टेंट, तो इन्होंने काम करना शुरू किया सहायक शिक्षक के रूप में. गिव प्राइवेट लेसन्स एंड द फाइनली सिक्योर्ड अ जॉब 1902 एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न. ही वर्कड एज अ टीचिंग असिस्टेंट, सहायक से शिक्षक के रूप में काम करने लगे. गिव प्राइवेट लेसन्स, अलग से ही पढ़ाने लगे, ट्यूशन भी देने लगे. एंड फाइनली सिक्योर्ड अ जॉब, आखिरकार उनको जॉब मिल गई 1902 1902 की बात है. ऐसा टेक्निकल एक्सपर्ट, किस रूप में जॉब मिल गई? टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में जॉब मिल गई इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्लिन के एक अच्छे ऑफिस में. वाइल ही वाज सपोज टू बी असेसिंग अदर पीपल इन्वेंशन, जब ये दूसरे लोगों के इन्वेंशन को यानी कि जो भी आविष्कार थे उसको समझते थे, देखते थे, आइंस्टीन वाज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडिया इन सीक्रेट. तो आइंस्टीन भी अपना खुद के विचार, खुद के जो सीक्रेट थे किसी चीज़ का आविष्कार करने के लिए, वो चुपचाप से इनके चलते रहते थे. ही इज़ सेड टू हैव जोकिंगली, कभी एक बार उन्होंने मजाक में कहा था, कार्ड हिज डेस्क, तो उनकी जो डेस्क थी, ड्रॉयर एट द वर्क द ब्यूरो ऑफ थियोरिकल फिजिक्स, तो मेरा जो ड्रायर है इसमें बहुत कुछ रखा हुआ है, बहुत ख़बरें हैं, बहुत सारी सीक्रेट हैं, और ये थियोरिकल फिजिक्स का एक सेंटर है. वन ऑफ द फेमस पेपर ऑफ 1905 आइंस्टीन स्पेशली थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, एक अखबार निकला था 1905 में, उसमें आइंस्टीन का एक प्रिंसिपल, एक सिद्धांत छपा हुआ था, एक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की थ्योरी छपी हुई थी. अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट, और उस थ्योरी में इन्होंने बताया था समय और जो दूरी है वो सेम नहीं रहती है. टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट, एक से नहीं हो सकते हैं. इंडीड टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक, यहाँ तक कि दो समान रूप से चलने वाली जो घड़ी हैं विल नॉट कंटिन्यू टू सेम टाइम, एक सा समय आपको नहीं बताएंगे. इफ़ दे कम टुगेदर अगेन आफ्टर अ जर्नी, इफ़ वन ऑफ देम हैज़ बीन मूविंग वेरी फास्ट रिलेटिव टू द अदर, यदि दोनों घड़ियों को अलग अलग दिशा में यात्रा कराई जाए, इफ़ दे कम टुगेदर अगेन आफ्टर अ जर्नी, यदि एक यात्रा के बाद दोनों को साथ लाया जाए, इफ़ वन ऑफ देम हैज़ बीन मूविंग वेरी फास्ट, और यदि उनमें से एक घड़ी तेज़ चल रही हो रिलेटिव टू द अदर, तो आप देखेंगे दूसरे के मुकाबले एक घड़ी उसमें ज़्यादा तेज़ चल रही होगी. फ्रॉम दिस फॉलोड द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फार्मूला,
और इसी की वजह से संसार का सबसे फेमस जो फार्मूला है पूरे वर्ल्ड का, बहुत ही फेमस फार्मूला, जिसे छोटे से छोटा स्टूडेंट भी जानता है, हर कोई जानता है, बिना इस फार्मूले के बहुत सारे सिद्धांत नहीं निकल सकते फार्मूले। फ्रॉम दिस फॉलोड द वर्ल्ड मोस्ट फेमस फार्मूला विच डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द मास एंड एनर्जी। जो फार्मूला है वो फार्मूला डिस्क्राइब करता है रिलेशन, यानी कि संबंध बिटवीन मास एंड एनर्जी, मास और एनर्जी में क्या संबंध है। E इक्वल mc स्क्वायर, एज यू नो दिस इज द वर्ल्ड फेमस फार्मूला ऑफ फिजिक्स। E इक्वल mc स्क्वायर। In the mathematical equation, E stand for energy, as you know, m for mass and c for the speed of the light in a vacuum about 3 lakh kilometer per second. While Einstein was solving the most difficult problem in physics, और जब आइंस्टीन जो है फिजिक्स की सबसे कठिन प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे, वाइल आइंस्टीन वाज सॉल्विंग द मोस्ट डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम, और जब आइंस्टीन फिजिक्स की सबसे कठिन प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे, हिज प्राइवेट लाइफ वाज अनराइवलिंग। तो इनका जो प्राइवेट, इनकी खुद का जो जीवन था, इनके घरेलू जो जीवन था, वो भी अफेक्टेड हो रहा था, उसमें भी कुछ ना कुछ परिवर्तन आ रहा था। अल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मिलेवा। अल्बर्ट जो है मिलेवा से शादी करना तो चाहते थे राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडी, लेकिन कब? अपनी पढ़ाई पूरी करने के जस्ट बाद वो शादी करना चाहते थे। बट हिज मदर वाज अगेंस्ट, लेकिन उनकी माँ इस चीज़ के खिलाफ थी, मिलेवा के खिलाफ नहीं थी, आइंस्टीन के इस विचार के खिलाफ थी कि तुम अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद क्यों शादी करोगे, शादी अभी कर लो। शी थॉट मिलेवा हु वाज 3 years ओल्डर देन हर सर, उनका सोचना था मिलेवा जो उनके बेटे से 3 साल बड़ी थी, यानी मिलेवा मैरिक आइंस्टीन से उम्र में 3 years ओल्ड, यानी 3 साल बड़ी थी। वाज टू ओल्ड फॉर हिम, और ये भी सोचती थी कि उनके बेटे के लिए बहुत बड़ी हैं। शी वाज ऑल्सो बॉदर्ड बाई मिलेवा इंटेलिजेंस, और मिलेवा की इंटेलिजेंसी से भी बहुत ज़्यादा बॉदर्ड थी। शी इज़ अ बुक लाइक यू, हिज मदर सेड, उनकी माँ ने कहा ये तुम्हारे लिए किताब की तरह है, वो किताब है तुम्हारे लिए। आइंस्टीन पुट द वेडिंग ऑफ, तो आइंस्टीन ने कुछ दिन के लिए शादी को ऑफ करना चाहा, यानी दूर रखना चाहा। द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903, लेकिन आखिरकार 1903 में इन दोनों ने शादी कर ली। एंड हैड 2 sons, और इन दोनों के 2 बेटे थे। बट अ फ्यू ईयर्स लेटर द मैरिज फॉल्टर्ड, लेकिन कुछ दिन के बाद, कुछ वर्षों के बाद, कुछ सालों के बाद इन दोनों की शादी फॉल्टर्ड, यानी कि कमज़ोर पड़ गई। मिलेवा मीनवाइल वाज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन, मिलेवा को लगने लगा कि उसकी जो आकांक्षाएं थी, एम्बिशन थे, जो वो सोचती थी कुछ बनने के लिए, कोई कैरियर में कुछ करने के लिए, वो तो कुछ हो ही नहीं पा रहा। एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउसवाइफ, मैं तो घर की एक हाउसवाइफ बनकर ही रह गई। अनहैप्पी यानी नाखुश, उदास, दुखी। आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग, और वर्षों तक लगातार एक दूसरे से बहस होती रही, लड़ाइयाँ होती रहीं, पति पत्नी में बहुत सारी हिंसा भी हो जाती है, लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं। द कपल फाइनली डाइवोर्स 1919, आखिरकार दोनों ने एक दूसरे से तलाक ले ली, डाइवोर्स ले लिया 1919 में। आइंस्टीन मैरिड हिज कजिन एल्सा द सेम ईयर, ये 1919 वही ईयर है जब हमारे यहाँ जलियांवाला मास्कर हुआ था, जलियांवाला कांड जो हुआ था 1919 में हुआ था पंजाब में, तभी की बात हो रही है, जब भगत सिंह सिर्फ 9-10 साल के थे, तब की बात हो रही है। आइंस्टीन मैरिड हिज कजिन एल्सा द सेम ईयर, 1919 में उन दोनों ने जब डाइवोर्स ले लिया, आखिरकार उसी साल आइंस्टीन ने जो है अपनी जो भी इनकी कज़िन थी जिसका नाम एल्सा था, उसी से ही शादी कर ली। आइंस्टीन न्यू पर्सनल चैप्टर कंसाइडेड विथ हिज राइज ऑफ टू वर्ल्ड फेम, आइंस्टीन का जो पर्सनली जो चैप्टर था वो उसका जो उदय हुआ है, राइज हुआ है पूरे संसार में, जब उसको प्रसिद्धि मिलने लगी। 1915 ही हैड पब्लिश हिज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, 1915 में जब उसने अपनी रिलेटिविटी का सिद्धांत जो है प्रस्तुत किया था, जनरल जो थ्योरी थी, विच प्रोवाइड अ न्यू
इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी। तो इस सिद्धांत ने गुरुत्वाकर्षण के नियम की परिभाषा ही बदलकर रख दी थी। एंड इक्लिप्स ऑफ द सन इन 1990, जब 1919 में एक इक्लिप्स पड़ा, एक सूर्य ग्रहण जब ऑकर हुआ, घटना घटी, ब्रॉड प्रूफ दैट इट वाज एक्यूरेट, तो उससे ये माना गया कि आइंस्टीन ने जो थ्योरी दी है रिलेटिविटी की वो बिल्कुल एक्यूरेट है और बिल्कुल सही है। आइंस्टीन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस द एक्सटेंट टू विच, आइंस्टीन पहले से ही सारी चीज़ें कैलकुलेट कर लेते थे, करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस, पहले से ही, एक्सटेंट टू विच द लाइट फ्रॉम फिक्स्ड स्टार, और उनका मानना भी था कि जो फिक्स्ड स्टार हैं जो हमेशा वहाँ पर दिखाई देते हैं उनकी लाइट भी फाल्टर्ड होती रहती है, ऊपर नीचे होती रहती है, वुड बी डिफेक्टेड, वो भी डिफेक्टेड हो जाती है, कमज़ोर पड़ जाती है थ्रू द सन ग्रेविटेशनल फील्ड, जब वो सूर्य की ग्रेविटेशनल कक्षा में आ जाते हैं, फील्ड में आ जाते हैं, तो उनका प्रकाश भी डिफेक्टेड हो जाता है। द न्यूज़पेपर प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज अ साइंटिफिक रेवोल्यूशन, तो न्यूज़पेपर ने इनके इस काम को छापा, और क्या छापा, अ साइंटिफिक रेवोल्यूशन, इन्होंने जब थ्योरी दी रिलेटिविटी की और वो प्रूफ हो गई, एक्यूरेट हो गई, तो न्यूज़पेपर ने छापा अ साइंटिफिक रेवोल्यूशन, वैज्ञानिक दुनिया में क्रांति आ गई है, बहुत बड़ा बदलाव हो जाना, इसको क्रांति कहते हैं, रेवोल्यूशन कहते हैं। किसी भी चीज़ में, किसी भी फील्ड में सडनली चेंज आ जाए, बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाए, बहुत ज़्यादा उस चीज़ के चर्चे होने लगे, इट्स कॉल्ड रेवोल्यूशन। आइंस्टीन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज़ फॉर फिजिक्स इन 1921, 1921 में। जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे थे, इनका जो फेम था, जो फेमस होना था, वो बढ़ता चला जा रहा था। 1921 में इनको आखिरकार नोबेल प्राइज़ मिल गया। नोबेल प्राइज़ इज़ द वर्ल्ड टॉपेस्ट अवार्ड, वर्ल्ड का जो सबसे टॉपेस्ट यानी सबसे बड़ा जो अच्छे लेवल का अवार्ड है, दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड, वो है नोबेल प्राइज़। और किसी भी इंसान को जिसको मिलता है उसको बहुत महान माना जाता है। हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों को मिला हुआ है। सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में मिल गया था, आइंस्टीन को तो 1921 में मिला, रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में ये अवार्ड मिल गया था। ही वॉज शावर्ड विथ ऑनर एंड इन्विटेशन फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड लॉर्डेड बाय द प्रेस। तो जब इनको नोबेल प्राइज़ मिला तो पूरे संसार से शावर्ड यानी कि बारिश होने लगी, विथ ऑनर्स, बहुत सारे सम्मानों से, एंड इन्विटेशन, बहुत सारे इन्विटेशन से, फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड लोडेड बाय द प्रेस, पूरे संसार से इनको इन्विटेशन मिलने लगे, पूरे संसार में इनका फेम हो गया, और प्रेज भी इनसे बहुत सारी चीज़ों को पूछने लगा। वैन द नाजीज केम टू द पावर इन जर्मनी इन 1933, जब नाजीज़ की सेना जो है पावर में आई 1933 में जर्मनी में, आइंस्टीन एमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स। तो आइंस्टीन को वहाँ रहना पसंद नहीं आया, क्योंकि कोई भी पर्सन जो है शांति में रहना पसंद करता है, कोई भी हिंसा, लड़ाई, ये सब चीज़ों से बहुत दूर रहना चाहते हैं आज की जो पॉपुलेशन है। व्हेन द नाजीज केम टू द पावर इन जर्मनी, जब नाजीज की सेना की ताकत जो है जर्मनी में पावर में आई 1933, आइंस्टीन एमिग्रेटेड टू यूनाइटेड स्टेट। आइंस्टीन कहाँ चले गए? यूनाइटेड स्टेट्स चले गए। 5 years लेटर, 5 साल के बाद, द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिशन इन बर्लिन। तो बर्लिन में 1938 में पाया गया कि डिस्कवरी हो चुकी है न्यूक्लियर फिशन की। हैड अमेरिकन फिजिसिस्ट इन अप्रोच। तो अमेरिका के जो फिजिसिस्ट थे, जो भौतिक वैज्ञानिक थे, वो चिंता में आ गए। मैनी ऑफ देम हैड फ्लेड फ्रॉम फैसिज्म जस्ट एज आइंस्टीन हैड। बहुत सारे लोग भाग गए वहाँ से, जिस तरह से आइंस्टीन भागकर अपना देश दूसरी जगह आ गए थे। एंड नाउ दे वर अफ्रेड द नाजीज कुड बिल्ड द यूज एन एटॉमिक बॉम्ब। और बहुत सारे ये सोचने लगे कि अब नाजीज जो है अपना खुद का बॉम्ब बना लेंगे। एट द अर्जिंग ऑफ अ कलीग, आइंस्टीन रोट अ लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। अपने इनके जो भी दोस्त थे आइंस्टीन के, उन सब ने अर्घ किया, यानी इनसे रिक्वेस्ट की, प्रार्थना की कि आप कृपया करके एक लेटर अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, उनको एक पत्र लिख दीजिए। इन्होंने लिख दिया उनके कहने पर। ऑन 2 अगस्त 1939 इन विच ही वांट, 2 अगस्त को 1939 में जब उन्होंने लेटर लिखा, उसमें उन्होंने चिंता जताई इस चीज़ की, अ सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप एक्सप्लोडेड
इन अ पोर्ट। अगर इस तरह का कोई एक बम किसी पोर्ट पर गिर जाएगा, माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय द होल पोर्ट टुगेदर, तो उसकी वजह से पूरा जो पोर्ट है जहाँ पर शिप वगैरह आके रुकते हैं, पोर्ट कहलाता है, पूरा पोर्ट क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा टुगेदर विथ सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरी। और सिर्फ पोर्ट ही नहीं, पोर्ट के आसपास और जितनी भी टेरिटरी है, जितनी भी जगहें हैं, वो सब डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। हिज वर्ड डिड नॉट फेल टू हैव एन इफेक्ट, लेकिन उनके इन शब्दों का, उनके इस लेटर का, उनकी इन बातों का राष्ट्रपति रूजवेल्ट के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। द अमेरिकन डेवलप्ड द एटॉमिक बॉम्ब इन अ सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ओन, क्योंकि अमेरिका वासी खुद का एक सीक्रेट बॉम्ब बना रहे थे और इसके बारे में शायद आइंस्टीन को भी पता नहीं था। एंड ड्रॉप इट ऑन द जापानीज सिटी ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945। तो आइंस्टीन को कब पता चला, जब अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 के दिन जो है, अभी कुछ दिन पहले ही 9 अगस्त गुजरी है, तो उस दिन जो है 1945 में 2 बॉम्ब जो है वहाँ पर गिरा दी, हिरोशिमा सिटी एंड नागासाकी सिटी। आइंस्टीन वाज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन, बड़ी तकलीफ़ हुई आइंस्टीन को कि जो बम गिराए गए थे उससे वाज डीपली शेकन, उस पर एक गहरा सदमा लगा, दुख हुआ बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन, जिस तरह से वहाँ पर नुकसान हुआ था, डिस्ट्रक्शन हुआ था। दिस टाइम ही रोट अ पब्लिक मिसिव टू द यूनाइटेड नेशन, इस बार उसने पब्लिक की तरफ से यूनाइटेड नेशन को एक लेटर लिखा। इन इट ही प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ अ वर्ल्ड गवर्नमेंट, इस लेटर में आइंस्टीन ने एक प्रस्ताव दिया कि आप एक संसार की एक ऐसी सरकार बनाए, पूरे संसार के लोग उसमें शामिल हों। अनलाइक द लेटर टू रूजवेल्ट, जिस तरह से उसने राष्ट्रपति रूजवेल्ट को लेटर लिखा था, उसी तरह से ये लेटर यूनाइटेड नेशन को लिखा। दिस वन मेड नो इम्पैक्ट, लेकिन इसका भी यूनाइटेड नेशन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जिस तरह से रूजवेल्ट ने उनके शब्दों को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, उसी तरह से यूनाइटेड नेशन ने भी आइंस्टीन के इन शब्दों को कोई ध्यान नहीं दिया। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड, लेकिन आने वाले नेक्स्ट डिकेड में, यानी कि आने वाले 10 वर्षों में, आइंस्टीन गॉट ओवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स, आइंस्टीन धीरे धीरे क्या होने लगा, गॉट इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स में, यानी राजनीति में इन्वॉल्व होने लगे ज़्यादा से ज़्यादा। एजिटेटिंग फॉर एन एंड ऑफ द आर्म बिल्डिंग एंड यूजिंग इज पॉपुलैरिटी टू कैंपेन टू पीस एंड डेमोक्रेसी, और ये कैंपेन करने लगे, ये घर घर जाने लगे, लोगों को समझाने लगे पीस एंड डेमोक्रेसी के, यानी शांति के लिए, लोकतंत्र के लिए, अच्छे से इस संसार में जीवन व्यतीत करने के लिए, राजनीतिक भी हो गए थोड़ा सा, और लोगों के बीच में डेमोक्रेसी का और पीस का कैंपेन भी करने लगे। When Einstein died in 1955 at the age of 76, और जब इनकी मृत्यु हुई 1955 में, जब ये 76 ईयर के हो गए, ही वॉज सेलिब्रेटेड अ विजनरी एंड वर्ल्ड सिटीजन एज मच एज अ साइंटिफिक जीनियस, तो इनको पूरे संसार ने अपना नागरिक माना, हर देश ने इनको अपना नागरिक माना, और ये संसार के जो ग्रेट साइंटिस्ट रहे हैं, जीनियस साइंटिस्ट रहे हैं, उसमें इनकी गिनती होने लगी है। तो आपने देखा कि किस तरह से जो है एक ब्यूटीफुल माइंड का पर्सन जो है, जो बचपन में बहुत डल, बहुत ही बुद्धिहीन छात्र माना जाता था, धीरे धीरे कैसे उसने स्कूल में भी उसकी कभी अपने टीचर से नहीं बनी, धीरे धीरे उसने कैसे अपने आप को इस्टेब्लिश किया, क्योंकि उसका पूरा माइंड मैकेनिकल था, मैकेनिकल थिंग्स में अपना माइंड लगाता था। अपनी बहन के लिए भी उसने बोल दिया था कि इसके व्हील्स कहाँ हैं, तो उसने अपनी पढ़ाई को पूरा किया, यूनिवर्सिटी गया। तो आपने देखा उल्म में इनका जन्म हुआ था, उल्म से कैसे म्यूनिक आए, म्यूनिक में से कैसे ये जो है पढ़ने के लिए ये स्विट्ज़रलैंड सिटी चले गए, फिर वहाँ से जो है ज़्यूरिख आ गए, ज़्यूरिख से इन्होंने अपनी पढ़ाई को पूरा किया, और उसके बाद अपनी रिलेटिविटी का सिद्धांत दिया। सिद्धांत इनका जब पूरा हुआ, उसके बाद जब ये प्रूफ हो गया, तो इनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। नोबेल प्राइज़ मिलने के बाद जब नाजीज़ पावर में आए, तो ये भागकर कहाँ गए, यूएसए आ गए, और यूएसए में ही फिर उसके बाद ये रहते रहे, और 1955 में इनकी डेथ हो गई। दैट्स एंड ऑफ द चैप्टर टुडे, एंड एज वेल एज एंड ऑफ द लेक्चर ऑफ पार्ट 2. I hope you like the video.
If you have any problem, comment in the comment box. If you want to discuss this topic with us, you can come to school, and if you have any other problem, you can also come to school to discuss other topic to the other person of the school. I hope you like the video. Thank you very much. We will meet in the next video.